In the last lecture, we discussed about integrator and differentiator, right? That was our portion. We finished op-amp differentiator and integrator. Now we will go to comparator. Next application of op-amp. PPT is visible. This document is visible. Yes. क्लियर दिखता है कि थोड़ा बड़ा करो? यस, कुछ समझा नहीं, क्या बोला आपने? I didn't get. You can write in chat box. It's okay ना? मैम क्लियर है अभी. हाँ. हाँ. See, comparator, as the name suggests, it compares, right? What compares? It compares the two voltage. Which voltages? V1 and V2, which are applied at the positive and negative terminals, right? So these two voltages are compared and the output is changed between two states or two voltage levels. Output changes its states between two voltage levels plus Vsat. I will explain what is it, and minus Vsat. Plus Vsat matlab saturation voltage value. Minus V minus negative saturation value. Now what is this saturation? Like transistor goes into saturation when we say transistor becomes on, right? Here op-amp goes into either plus Vsat or minus Vsat. That means at a fixed voltage level, it will remain there. So that is saturation. Saturation is actually what is the condition? It has some constant value, right? So two fixed voltage levels are there, plus Vsat and minus Vsat for op-amp, and that value, voltage value, is decided by the applied voltage to the 7 number and 4 number pin. 7 number pin is plus VCC, 4 number is minus VCC. Okay, so generally 15 volt plus minus 15 volt is the voltage applied to the power supply terminal of op-amp, 7 number pin and 4 number pin, or sometimes 12 volt plus minus 12 also we can use, right? So suppose here 15 volt is applied, so 2 volt less than this 15 volt will be the saturation value. So plus 13 volt, 2 volt less is plus 13 volt. Here 2 volt less is minus 13 volt, right, with negative value. So the output voltage will give you either this plus 13 volt or minus 13 volt value. Okay, depending on which voltage is greater. If positive terminal voltage is greater than, that means V1 is greater than V2, then that means positive voltage is greater than negative terminal voltage, then you will get plus Vsat, plus 13 volt, equal to plus 13 volt. And if V2 is greater than V1, that means negative terminal voltage is greater than positive terminal voltage, then you will get negative saturation value, minus 13 volt. And mind that this is open loop, there is no feedback here, right? So comparator doesn't have feedback. It will compare only the two voltages. It will not give you any additional that means amplified value, amplified voltage value. Okay, because open loop gain, you know that 10 raised to 5 to 10 raised to power 9 volt, it is very high value, right? So this
voltage, this is gain. So this gain 10 raised to power 5 gain is very high. The difference is very small. Multiply by 10 raised to power 5 will give you voltages in thousands, right? And there is no point to measure that voltage. That is not practically correct. So what we are getting at the output is only square wave. And this square wave goes up to what? This positive Vsat value and negative Vsat value. So comparator output is always square wave. Remember this. Okay. Comparator output is always square wave. If you display that waveform on CRO. Okay. So these values are compared and output is independent of the value what you are applying here. 0.1 hai, 0.2 hai, whatever it may be, you are applying at the inputs. Output will be the square wave oscillating between two values, plus Vsat and minus Vsat, right? So now we will see the applications of this comparator. They are used as zero cross detector, zero level detector, or as a square wave generator because it will produce square wave. So which input is there at the, which input you are providing here, it doesn't matter. It will give you square wave oscillating between two voltage levels, plus Vsat and minus Vsat. Okay. Now here in this case, in the first application as a square wave generator, this comparator can be used to produce square wave from a sine wave. So you can call it as sine to square wave converter. Okay. You can call it as, suppose apne, if you provide here this one triangular waveform, that also will produce square wave. Okay. So which waveform you are providing at the input doesn't matter. It will give you output varying between these two. Slow varying input should be there at the input, and then only you will get output as square wave, right? So how it works, I will show you the diagram. We'll draw here. This is our input. Sine wave input. This is time axis and y-axis is voltage axis, right? So this voltage is continuously increasing. This is zero level. Input voltage is continuously increasing, reaches to its maximum, then comes down again, becomes zero and goes into negative direction. Again comes to zero, then goes to positive direction. So this cycle repeats, right? And then you will get sine waveform, right? Now there is input voltage here, AC voltage. Suppose this is 5 volt, peak value is 5 volt here. This is your input. This is your 5 volt, right? Now this is voltage at which terminal? Plus terminal. And at the negative terminal, that is inverting terminal, what we are applying is ground. You can see the symbol of ground here, this one, right? Ground has 0 volt, potential 0. So at one terminal we are providing 0 volt. So the comparator will compare this input voltage, which is continuously changing, starting from 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4 up to 5, then comes down again, comes to 0, then goes into minus 0.1, 0.2, minus 5, then again comes to 0, like this. So it is continuously changing, right? So comparator at every stage it will compare this voltage with 0 volt. Again at
मैम यस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड नहीं अप्लाई हुआ क्या? क्या क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है। जब आप ये निगेटिव फीडबैक देंगे ना, तब होगा। यहाँ ओके नहीं मैम। है ना, ओपन लूप है ये। ओके, यहाँ पे नहीं कर सकते। So यहाँ at every point the comparator will compare this 0 volt with changing voltage. With changing voltage, input voltage. It is continuously changing. Okay. So as soon as the voltage, अब यहाँ पे आप if we consider this positive half cycle, you can see that at this positive half cycle, all the voltages are greater than 0, varying this first point and this last point. Just इसके above we can call it as suppose 0.1 volt, 0.2 volt, right? So it is certainly greater than 0 volt. So 0 volt से यहाँ का voltage ज़्यादा है. So positive terminal is having voltage greater than negative terminal. So it will goes into positive saturation, right? So ये positive saturation means what? The plus 13 volt. So during positive half cycle, what we are getting is plus 13 volt, that is positive saturation, right? ये वोल्टेज लेवल हमें मिलेगी कब तक मिलेगी? जब तक ये 0 नहीं आता। जैसे ये 0 के नीचे, 0 आ गया, ठीक है, जैसे 0 के नीचे जाएगा, व्हाट इज द वोल्टेज हियर? माइनस 0.1 वोल्ट सपोज, राइट? 0 से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, 0.1, और विथ नेगेटिव साइन, बिकॉज ये नेगेटिव वोल्टेज है। तो जैसे ही यहाँ का वोल्टेज नेगेटिव गया, तो 0 volt is greater than negative voltage, right? So voltage at negative terminal is greater than now, greater than what? Voltage applied at positive terminal. तो जैसे ही negative terminal का voltage ज्यादा हो गया, it will change its position from positive to negative saturation. Output will change its voltage level from positive to negative saturation. So suddenly, ये जो sudden change है, okay, तुरंत वो चेंज करेगा ये लेवल. So as soon as it crosses the 0 line, input crosses the 0 line, it will become negative. That will cause the output of comparator to change the state from positive saturation to negative saturation. And this will be, that output will remain in that state. कब तक रहेगा? Remain in that state जब तक ये negative half cycle है. यहाँ पर माइनस 0.1 है, देन माइनस 0.2 है, -2 है, -3, -4, -5. उससे भी कम हो गया तो -4, -3, -2, -1, -0.5, 0.9, 0.8, माइनस माइनस करके यहाँ तक 0 तक. सो थ्रू दिस स्टेट यहाँ पर आपका आउटपुट क्या रहेगा? नेगेटिव 13 वोल्ट, नेगेटिव सैचुरेशन. और ये आपका चेंजिंग है, चेंजिंग पॉइंट, राइट? और यहाँ तक आपका आउटपुट क्या रहेगा? पॉजिटिव सैचुरेशन. सो दिस इज योर आउटपुट वेवफॉर्म एंड दिस इज योर इनपुट वेवफॉर्म. आ रहा है समझ में? सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑलवेज द इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन दिस 0 वोल्ट, ये वाला वोल्टेज, राइट? तब तक आपका आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन में रहेगा. As soon as your input goes into negative half cycle, the terminals voltage, positive terminals voltage, will become less than the negative terminal voltage, जो कि 0 है constantly, right? What is changing? Your input is changing. So according to the status of input, your output will switch its state from plus 13 volt to negative 13. और जैसे ये क्रॉस हो गया, ये लाइन क्रॉस हो गया, अगेन ये वोल्टेज ग्रेटर देन 0 हो गया. As soon as the voltage at this positive terminal becomes greater than 0, again ये negative saturation से
पॉजिटिव सैचुरेशन स्विच करेगा. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग, यहाँ अब ये चेंज करेगा. यू आर गेटिंग दिस स्क्वायर वेव. एक्चुअली दिस स्टेट चेंजेस मीन्स व्हाट? आपको if you observe on the CRO, sometimes only you will get these levels, voltage levels. Yes, ma'am. है ना? ये भी नहीं दिखता है, ये चेंजिंग वाला. Okay, depending on what time per division knob you are using, ये भी नहीं दिखता है. तो ये voltage levels are +13 volt and -13. और कभी कभी वो दिख जाता है, यहाँ से यहाँ वो सडन चेंज होता है. फॉर ह्यूमन आई persistence we can see continuously waveform. Okay, but actually they are two voltage levels and it is continuously switching the voltage levels. That's why we get continuous waveform. Okay, and what is waveform? Actually it is repetition of some pattern, whether it is sine wave or square wave or triangular wave. One cycle is repeated. ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा एंड सो ऑन. राइट? as long as your signals they are working here, they are you are providing them at the input, that time you will get output. When you switch off input voltage, this output voltage is also switched off. You cannot see anything on the CRO, right? Like this. So it depends on input. So this is one application, square wave generator. In TY, when if you take physics, you will have to do projects. Okay, and it has some marks. So projects, both semester, fifth and sixth, you have to do the project. So such small circuits also can be taken, and you modify this circuit because there are many applications of this square wave, this comparator. So you can make a big project out of it. सॉरी मैम, हम लोग कैपेसिटर भी यूज करते हैं ना स्क्वायर वेव जनरेशन के लिए इसमें एम्पलीफायर में? किसमें? एम्पलीफायर में मतलब ओपीएम में हम लोग कैपेसिटर भी यूज करते हैं ना स्क्वायर वेव जनरेशन के लिए? हाँ, उसमें हाँ, जब हम ये यूज करते हैं इंटीग्रेटर में दिखाया था ना कैपेसिटर, राइट? हाँ मैम. हाँ, तो उसमें भी हो सकता है. Different circuits are available for producing square wave. This is one of the circuit. तो आप ये प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं to produce square wave from different circuits, and then construct different circuits on breadboard. Either breadboard or solder भी कर सकते हैं आप. PCB लेके solder कर सकते हैं. So there are various possibilities. Let us go ahead. Second इसका application is zero crossing detector. Mute करो, इसका on है. Zero crossing detector is same. If you see, circuit is same output you will get, but it is called as zero crossing detector because it is crossing the zero level. Output is crossing the zero level. That's why it is called as zero crossing detector. So when one input of comparator is connected to ground, it is known as zero crossing detector. यहाँ पर मैं ground की जगह दूसरा एक reference voltage लगा दूँ, so that will be your third application. So applications of comparators are many. By just changing some or by just altering the structure or doing modification in the structure, you can get different circuits. Output will be square wave only. Okay, so sometimes it is called a zero crossing detector because the output changes when the input crosses zero. अभी मैंने आपको डिटेल में वो समझाया. When this input changes the zero line, output crosses, output also changes its state from plus Vsat to minus Vsat, right? ये +13 volt to -13.
So the zero crossing detector is shown in this figure. The input and output waveforms, these are the input and output waveforms. When the input signal is positive going, this one positive going, the output is driven to positive maximum. अभी मैंने आपको समझाया, right? That is plus 13 volt. And when the input crosses the zero, ये zero है, input crosses that zero, begins to go into negative, the output is driven to negative saturation, minus 13 volt, right? So this is working of zero crossing detector. Same working of you can explain. Name different है बस. As a level detector, if instead of zero, if you are using any other voltage, V reference, zero की जगह आप एक V reference डाल देंगे, okay, and then it is applied to the inverting terminal. Then these two reference voltage and input voltage, they are compared and output is changed accordingly. If V reference is greater, negative saturation. If V in is greater, positive saturation, like this. Okay, and then you can decide. Now this is square wave. Perfect square wave has, this is T on and this is T off. T on and T off means on time and off time. This is on time, positive saturation, off time. If they are equal, this is perfect square wave. Okay, but if T on is less and T off is greater, there is one word called as duty cycle. So here duty cycle is 50%. Both are equal. Okay, but here T off is greater than T on. Sorry, here it should be T on. ये टाइम है वो ऑन टाइम है और ये टाइम है वो ऑफ टाइम. ओके, सो टी ऑन इज लेस देन टी ऑफ. आपको दिख रहा है ये बड़ा है, राइट? सो दिस काइंड ऑफ वेवफॉर्म इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म. इट कम्स फ्रॉम द concept of rectangle from the geometry. रेक्टेंगल में कैसे होता है? लेंथ बड़ा होता है एंड ब्रेड्थ छोटा होता है ना? ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है. सो लेंथ बड़ी है, ब्रेड्थ छोटा है. द वर्ड कम्स फ्रॉम देयर. ओके, अनइक्वल कहने का मतलब है दोनों का साइज अनइक्वल है. ओके, so this waveform is called as rectangular waveform, but this is called as square waveform. अभी आपको कंसेप्ट समझा? स्क्वायर मतलब सब साइड सेम होते हैं. स्क्वायर के साइड सब सेम होते हैं, राइट? सो टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ मतलब दोनों साइड सेम है तो वो स्क्वायर हो गया. और रेक्टेंगुलर में अनइक्वल साइजेस है ना, साइड्स का साइज अनइक्वल है, इसलिए रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म. सो ये हम कर सकते हैं इसमें लेवल डिटेक्टर में. इसमें वी हैव टू डिफाइन वन रेफरेंस लेवल विच कैन बी सेट बाय एक्सटर्नल रजिस्टर. वो कैसा सर्किट है वी विल सी. वी कैन set this value of V reference by using this external values of registers. So this is that circuit. Either you can directly apply V reference. This is battery symbol. और कितना निकाला है इसमें लाइन्स देखो, ऐसा क्यों निकाला है? 4 लाइन क्यों निकाले? बैटरी का तो ऐसा सिंबल है. What will be the reason? Guess. मैम हैवी है. राइट, ज्यादा वैल्यू की बैटरी अगर है तो ऐसा 4 निकालते हैं और सिंपल छोटी बैटरी है तो ऐसा निकालते हैं. ओके, तो जनरली पावर सप्लाई के लिए वी यूज दिस वन और बड़ा वैल्यू रहता है उसमें. ओके,
और ये क्या है, इनपुट वोल्टेज दैट इज अप्लाइड टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव को एक दूसरा रेफरेंस वोल्टेज हमने दे दिया, फिक्स है, ये डीसी सिंबल है, दोनों डीसी का सिंबल है। एसी का कैसा है, ऐसा। ओके, साइन वेव फॉर्म इज एसी सिंबल। So we have to give fixed voltage at one terminal, which is negative terminal, and another terminal is having changing, because input is changing, our input is AC waveform, that is changing. Okay, fixed waveform के लिए fixed मतलब DC के लिए कैसी waveform आती है, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, वो जितना है वो उतना ही रहेगा। 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही रहेगा, 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट ही रहेगा, राइट। जो आप अपने सेल यूज करते हैं बैटरी, दे आर डीसी, क्योंकि उसका वैल्यू सेम रहता है। ओके, और जो अपने घरों में आता है वो एसी है कि डीसी है, जो आप लेते हैं? एसी। एसी है, स्विच बोर्ड से लेते वो एसी है। वो क्यों एसी है? एनीबडी नोज द रीजन? उजाला? मैम बिकॉज डीसी करंट डायरेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट आएगा तो डिसएडवांटेज। क्या यस डिसएडवांटेज है? मैम फ्यूज हो जाएगा, जो लाइट है वो ज्यादा फुल करंट रहता है, इसकी वजह से हम लोग लाइट जो है डिफ्यूज हो जाएगी, और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो डैमेज हो जाएंगे। लाइक मतलब टीवी है मैम, टीवी को हम लोग कितना, जैसे आपने बताया था ना मैम, हम लोग मोबाइल को चार्ज करते तो बहुत कम वोल्ट लगता है, राइट, तो हाँ। इस टाइम पे ज्यादा सो वोल्ट मिलने की वजह से अलग अलग वोल्टेजेस लगते हैं आपके घर में, जितने भी गैजेट्स है, जितने भी अप्लायंसेस है, सबको थोड़ा अलग अलग वोल्टेज लगता है ना। तो अगर आप एक फिक्स ही वोल्टेज लेंगे घर में तो वो चलेगा नहीं ना, राइट। So every appliance needs its own voltage supply. तो और दूसरा रीजन क्या है एसी का, पता है आपको? इसका जनरेशन इजी है। जनरेशन मीन्स मतलब टू प्रोड्यूस इट, एसी को प्रोड्यूस करना इजी है डीसी से। और ट्रांसमिशन, फर्स्ट चीज है जनरेशन, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एसी इज वेरी इजी, तो नहीं बोल सकते, बट इट इज इजियर देन डीसी। वो टरबाइंस वगैरह रहते हैं जनरली, वो जो वाटर बॉडी रहती है, बड़ा सा लेक या बड़ा सा रिवर के ऊपर डैम्स बनाते हैं और वहां पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं वाटर से। देन देयर आर अदर सोर्सेस आल्सो, है ना, कोयले से भी बनाते हैं, उसका अलग अलग पावर प्लांट्स रहते हैं, वहां पे वो बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एसी का। ओके, देन दैट इज ट्रांसमिटेड, तो एक जगह तो स्टोर करके नहीं रख सकते उसको, राइट। जैसे ही वो बनती है उसे तुरंत ट्रांसमिट करना होता है, राइट। तो कंटिन्यूअस जनरेशन उधर चलता रहता है और ट्रांसमिट होता रहता है और वो कंज्यूम होता रहता है। ये साइकिल है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, इट शुड बी ठीक है, ट्रांसमिटेड एंड देन कंज्यूम्ड by the consumer. We are consumer, right? Either factories में, labs में, colleges में, सभी जगह, offices में, homes में, सभी जगह AC आती है। So what is the reason? Generation, transmission and consumption is easy process of this AC. ये जो ट्रांसमिट करते हैं ना हम, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ट्रांसफॉर्मर रहते हैं, हैव यू हर्ड दिस? ट्रांसफॉर्मर पता है आपको क्या करता है? हाँ मैम, हाँ, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? उसका वोल्टेज बढ़ा देता है मैम। हाँ, बढ़ाता है या कम करता है? दोनों काम करता है। दोनों करता है। दोनों करता है। हाँ, राइट। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। दोनों काम वो कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली दैट वो उसके जो वाइंडिंग्स रहते हैं उसमें कॉपर वायर के वाइंडिंग्स रहते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो डिसाइड करते हैं कि वेदर दे आर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं, ये जो बड़े पैमाने पे जो प्रोडक्शन होता है ऑन लार्ज स्केल, राइट, प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल इज डन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, केवी में रहता है वो,
इफ यू MV और KV मतलब क्या, किलो वोल्ट, किलो मीन्स व्हाट, 10⁻³ मतलब 1000 वोल्ट बहुत हो गया। हमारे घरों में आता है वो कितना रहता है, 230 वोल्ट AC, ये वैल्यू है, राइट। बहुत कम हो गया एज कम्पेयर टू दिस। तो कितना, तो KV सबस्टेशन ऐसा नाम रहता है, उस सबस्टेशन का नाम पे बोर्ड पे ही लिखा रहता है, राइट। इसका मीनिंग क्या है, उस यूनिट की कैपेसिटी इतनी है। सपोज 21 किलोवोल्ट सबस्टेशन है, तो इट कैन हैंडल AC वोल्टेज अप टू 21,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा है ना। तो वहां पे सेफ्टी मेजर्स उतने लेने पड़ते हैं। फिर वहां से वो ट्रांसफार्मर के थ्रू, ट्रांसफार्मर फिर उसको स्टेप डाउन करता है, बिकॉज इतनी बड़ी पैमाने पर हमको चाहिए नहीं, राइट। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स आर देयर एवरीवेयर। इफ यू सी, DP भी बोलते हैं उसको, है ना, DP ये वर्ड भी यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, राइट। सो ऐसे आपने देखा होगा मोहल्ले में वगैरह कहीं पे ट्रांसफार्मर्स रहते हैं, वहां से फिर वो इंडिविजुअल होम्स में जाता है, कम होके। कितना कम करेगा वो, 230 वोल्ट, ओके। यहाँ से और कम होगा, यहाँ से और कम होके 230 वोल्ट करके ही वो अपने घरों में आता है। और कभी कभी वो अप भी जाता है 230 से। जब अप जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन बोलते हैं ना, तो होता रहता है कम ज्यादा, है ना। तो आपकी जनरेशन ने इतना नहीं देखा है, बट हमारे टाइम क्या होता था, ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, तब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी इतना ये नहीं हुआ था, तो फ्लक्चुएशंस ज्यादा होता था, तो टीवी फ्रिज बहुत बार डैमेज हो जाता था। तो उसको क्या लगाते थे, स्टेबलाइजर। पहले के फ्रीज में ऐसा स्टेबलाइजर लगाना पड़ता था, तो इट स्टेबलाइजेस, यस। गाँव में अभी भी यूज होता है स्टेबलाइजर। हाँ हाँ, अभी भी देखो जहाँ पर वो ज्यादा फैसिलिटी नहीं है ना, वहाँ पे अभी भी होता है कि अगर वो फ्लक्चुएशन हुआ और स्टेबलाइजर नहीं है, स्टेबलाइजर का काम क्या है, टू गिव द कांस्टेंट वोल्टेज। कितना वोल्टेज, इतना। अगर 230 से ज्यादा हो गया तो इसमें जो सर्किट कंपोनेंट्स रहते हैं, दे एडजस्ट दैट वोल्टेज अप टू 230 वोल्ट, राइट। सो ये काम स्टेबलाइजर करता है। अगर स्टेबलाइजर नहीं है तो डायरेक्ट टीवी या फ्रिज को ग्रेटर देन 230 वोल्ट जाएगा वोल्टेज, एंड दे कैन डैमेज। जो भी हमारे अप्लायंस है, टीवी वगैरह जो भी है, वो डैमेज हो जाएगा, राइट। तो पहले आता था, अभी तो इनबिल्ट ही ये स्टेबलाइजर अंदर ही आता है। पहले ऐसा बाहर रहता था बॉक्स, पावर सप्लाई जैसा बाहर रहता था, टीवी के ऊपर रखते थे, फ्रिज के ऊपर रखते थे, ऐसा टीवी के बाजू में रखते थे। टीवी पहले बड़ा आता था, किसी ने ऐसा पुराने पिक्चर में वगैरह देखा होगा, बल्कि रहता था टीवी, ऐसा फ्लैट नहीं रहता था, हाँ, बॉक्स ही रहता था बड़ा सा। सो अभी के जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट ऑल दिस फैसिलिटीज, राइट। पावर ब्रेक नहीं होता है आजकल ना, बड़े शहरों में तो नहीं होता है, लाइट जाती नहीं है ना, बिकॉज एज पर द कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर्स, जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसका प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन भी उतना ही तेजी से होता है, राइट। बट उतना बिल भी हम ज्यादा भरते हैं, राइट। जो बड़े शहरों में होते हैं वो बिल का भी उनको ज्यादा आता है, so all these facilities they are provided by our electricity board. So AC's generation transmission is easier than DC, इसलिए DC को हम बाद में कन्वर्ट करते, because many appliances run on DC only. तब क्या करते हैं हम, AC to DC क्या लगाते हैं, कौन सा सर्किट करता है AC to DC कन्वर्जन, कौन करता है, ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्मर तो AC को ही AC में कन्वर्ट करता है, राइट, मतलब कम या ज्यादा करता है, एम्पलीफायर, नो, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर, राइट।
एम्पलीफायर क्या करेगा? ओनली एम्पलीफाई करता है, वो कन्वर्ट नहीं करता है ना। और ट्रांसफार्मर का काम एम्पलीफायर ही जैसा ही है, आइदर वो बढ़ाएगा या कम करेगा, राइट, बट सेम फॉर्म, एसी टू एसी। बट ये रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी। तो हमारे जो मोबाइल चार्जर्स है वो क्या है, वो वही काम करता है। वो एसी लेगा, हम सॉकेट में डालेंगे पिन, तो एसी लेगा, उसके अंदर रेक्टिफायर रहता है, वो जो चार्जर है उसके अंदर रेक्टिफायर रहता है, और वो कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी। फिर उसमें हमें कितना वोल्ट चाहिए उतना ही वोल्ट वो प्रोवाइड करता है। ओके, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, जितना भी है उतना वोल्ट वो मोबाइल को जितना लगता है वो बराबर लेता है, राइट। तो ऐसे ही आपका जो ये है, अभी एलईडी बल्ब्स वगैरह आते हैं ना, उसमें भी वो होता है एसी टू डीसी, बिकॉज ऑल दे रन ऑन डीसी। आया समझ में? तो इनबिल्ट ही रहता है उसमें, अंदर ही सारा ये कन्वर्जन वाला फैक्टर सर्किट बना रहता है अंदर। ठीक है, हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए देखो। लेट अस कम टू अवर दिस वन। ये हम एसी और डीसी के ऊपर से वहां पहुंच गए, ठीक है। दिस इज वी रेफरेंस डीसी, that is compared with this AC voltage which is changing. अच्छा, एक और सवाल। ये जब अगर आप एसी में चलता है आपका लाइट, और ये पहले के जो ट्यूबलाइट थे उसमें ऐसा कन्वर्जन नहीं था, अभी एलईडी में लगता है वो, तो उसका जो पीछे का साइड रहता है ना उसमें सब सर्किट रहता है। आपका कोई बल्ब खराब हो गया तो उसमें खोल के देखना, ओके। ये जो ट्यूबलाइट रहते थे वो डायरेक्ट एसी पे चलते थे, बट एसी तो चेंज करता है ना वोल्टेज ऐसा, तो फिर वो क्यों नहीं दिखता है हमें ऐसा, लाइट चालू बंद क्यों नहीं होता है, या कम ज्यादा क्यों नहीं होता है उसकी मैम इंटेंसिटी? वापस बोलो मैम, सुनाई। ये अगर आपका एसी चेंज होता है ना, वोल्टेज चेंज होता है, तो लाइट की इंटेंसिटी कम, आपकी ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा क्यों नहीं दिखती आपको? फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है वो। राइट। व्हाट इज द साइकिल ऑफ एसी? मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है ना। 50 हर्ट्ज है, मतलब विद इन 1 सेकंड यस मैम। ये 50 टाइम्स ऑन और ऑफ होना चाहिए। 50 साइकिल। हाँ, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्या है, वो 1 सेकंड में 50 साइकिल्स एसी के पास होते हैं ऐसे। ये 50, ये यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, एक साइकिल, 1 साइकिल, ये दूसरी साइकिल। सो 50 सच साइकिल्स पास्ड विद इन अ सेकंड, 1 सेकंड में पास होता है, राइट। सो इसलिए ये फास्ट रेट है ना, तो फॉर ह्यूमन आई वी कैनॉट आइडेंटिफाई वेदर इट इज ऑन और ऑफ, वो कंटिन्यूस दिखता है हमें। सेम इज द रीजन you can identify the continuity in the waveform which are displayed on the CRO. ये जो हमें दिखती है ये कंटिन्यूस वेवफॉर्म दिखती है, एक एक पॉइंट नहीं दिखता है ना। इतना फास्ट जाता है कि वो लगता है कि ये कुछ पाथ ऐसा फॉलो कर रहा है या ट्रेस कर रहा है CRO, है ना, ऐसा दिखता है हमें कंटिन्यूस। दैट इज द रीजन। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू मेनी। फाइंड आउट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। नाउ हियर इंस्टेड ऑफ applying fixed voltage, we can change, we can use this R1 and R2 register values and set. No doubt this also works. यहाँ पे अगर आप चेंजिंग वाला बैटरी लगा देंगे वेरिएबल, so that can also work, or such arrangement can be used. There are two resistors R1 and R2,
और एक फिक्स्ड वोल्टेज आपने लगा दिया। आपके पास अगर वेरिएबल बैटरी नहीं है ऐसी और आप चेंज करना चाहते हैं, देन आप यू कैन यूज दिस सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ वी रेफरेंस का वैल्यू क्या आएगा? वी रेफरेंस ऐसा है, आई विल ड्रॉ इट अगेन। दिस इज अवर R1, दिस इज अवर R2 एंड दिस इज ग्राउंड, दिस वन इज ग्राउंड। और यहाँ हमें वो जो वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी वी रेफरेंस ना, ये वी रेफरेंस इन बिटवीन दिस टू रेजिस्टर्स वैल्यू। सो ये वी रेफरेंस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इट इज कॉल्ड एज रजिस्टर डिवाइडर अरेंजमेंट, बिकॉज ये रेजिस्टर्स को डिवाइड करता है। तो वी रेफरेंस इक्वल टू, अभी ये वी रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम मेजर कर रहे हैं, किसके अक्रॉस मेजर कर रहे हैं? R2 के, राइट? दिस वोल्टेज इज अक्रॉस R2 ओनली, है ना, यहाँ तक का ही वोल्टेज वी रेफरेंस है। ओके, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिसके अक्रॉस है वो ऊपर लिखना है एंड टोटल रेजिस्टर नीचे लिखना है। सो R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया रेजिस्टर मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज अप्लाइड, दैट इज प्लस V। ओके, सो ये V रेफरेंस की वैल्यू क्या हो गई? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ओके, तो आपके पास एक फिक्स वोल्टेज आ गया। व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज वी कैन डिजाइन द कंपैरेटर हैविंग वेरिएबल रेफरेंस वोल्टेज, है ना। Such only change this R2 and R1 value, you can get another reference voltage, right? If you don't want that reference voltage, change this value again like this. That's why. Okay. So even though we can change the value at a time, one reference voltage we will use. Okay. So suppose ये 2 volt है, reference voltage की value 2 आ गई है after calculation. Now your input voltage is changing. Our reference voltage is 2 volt, है ना, 2 volt तक, and your input voltage is going above 2 volt. So now initially when the input voltage start to increase, it is less than 2 volt. तो यहाँ से यहाँ तक ये less than 2 volt है, right? So ये वाला portion input voltage का जो less than 2 volt है, so at that time ये वाला लेस देन 2 वोल्ट है अभी इनपुट वोल्टेज आपका, राइट? दैट मीन्स वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल इज लेस देन द नेगेटिव टर्मिनल, राइट? तो यहाँ पर कौन सा सैचुरेशन वोल्टेज आएगा? इसका वोल्टेज ज्यादा है नेगेटिव का ज्यादा है मतलब नेगेटिव सैचुरेशन, इतना याद रखो तो इजी जाएगा। जिस टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है वो सैचुरेशन रहता है। अभी नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है, राइट? इनपुट वोल्टेज कम है यहाँ तक का, राइट? तब आपका ये नेगेटिव सैचुरेशन रहेगा। तो इतना पोर्शन के लिए आउटपुट क्या रहेगा? नेगेटिव सैचुरेशन। यहाँ दिख रहा है ये। नाउ एज सुन एज दिस पॉइंट क्रॉसेस, क्या हो गया? अभी इसका वोल्टेज ज्यादा हो गया, इनपुट वोल्टेज ज्यादा हो गया, राइट? ग्रेटर देन कितना हो गया? 2 वोल्ट से ज्यादा, अब हो गया ना ये 2 वोल्ट यहाँ तक है। ये जो लाइन दिख रही है डैश डैश वाली, ये 2 वोल्ट है। इससे ज्यादा है यहाँ का पोर्शन का। कितना पोर्शन है? ये इतना ही पोर्शन है, राइट? जो कि ग्रेटर देन 2 वोल्ट है। तो अभी आपका इनपुट, पॉजिटिव इनपुट ग्रेटर देन 2 वोल्ट हो गया, तो मतलब नेगेटिव से ज्यादा हो गया। पॉजिटिव ज्यादा है मतलब ये प्लस V सैट देगा आउटपुट, कंपैरेटर है, राइट? तो आपको इतना पोर्शन के लिए दिख रहा है ये प्लस V सैट, ये वोल्टेज लेवल आएगी, राइट? अगेन नाउ योर इनपुट गोज बिलो 2 वोल्ट। ये सारा पोर्शन जो है ये 2 वोल्ट से लेस ही आएगा, बिकॉज ये निगेटिव में गया है ना। देखो यहाँ दिख भी रहा है, ये 2 वोल्ट की रेंज है, लाइन है, इसके नीचे है सब वोल्टेज। कहाँ तक है? यहाँ तक। तो
for this region you will observe that your output is again negative saturation. तो इतना पोर्शन तक वो नेगेटिव सैचुरेशन में रहेगा, माइनस वी सैट रहेगा, राइट. अगेन जैसे ही वो 2 वोल्ट क्रॉस कर लेगा, इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से ज्यादा हो गया, अगेन फॉर दिस पोर्शन यू विल गेट पॉजिटिव वी सैट, इतना पोर्शन, राइट. अगेन इट विल गो डाउन फॉर दिस पोर्शन, है ना. सो ये हो गई आपकी रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, नॉट स्क्वायर वेव, है ना. बिकॉज व्हाई इट इज रेक्टेंगुलर, why it is called as rectangular waveform? Because T on is not equal to T off. ये ज्यादा है, T off अनइक्वल है, ये दोनों टाइम्स, है ना. यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, अगेन कम देन ज्यादा. So this kind of waveform is called as rectangular waveform. Okay. So here we finish this comparison. Okay, I hope the point is clear. During this portion, when input is less than 2 volt, for example, I have taken 2 volt, it can be anything. This is V reference. We can set this value by using R1 and R2. So for this portion, minus V sat, when the input voltage reaches greater than 2 volt, the output voltage will change its state from minus V sat to plus V sat. Again, when the input voltage remains low, that is less than 2 volt, for this portion, the output will remain in minus V sat. Right? Again, it will come greater than 2 volt. For this, output will be plus V sat. Okay, understood? तो ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है. मैंने ये अपलोड किया क्या? नोट्स अपलोड नहीं मैम, ये वाला नहीं है, कंपैरेटर का नहीं है अभी. ओके, सो आई विल अपलोड इट टुडे, सो यू कैन गो थ्रू एंड रिवाइज इट. ठीक है. इसके बाद आता है आपका मल्टी स्टेज ओपैम्प्स, तो उसमें गेन कैसा निकालना है वो सब है. एंड उसके बाद 1 to 2 more applications are there, and after that we will go to oscillator, which is related to this one, transistor portion Sandeep sir is completing. After that I will take this one, applications oscillator, ट्रांजिस्टर का यूज करके. Let me note your attendance. इसको आपका इसी में है अब नेक्स्ट लेक्चर? नहीं मैम, दूसरे रूम में. हाँ ठीक है, फिर यू कैन लीव, आई विल एंड द मीटिंग.